Good morning, students. Today we are going to start our new chapter, chapter number 14, from a railway carriage. In this poem, we are going to read about railway carriage and when we sit in a railway, when we sit in a train, what kind of pictures, what kind of images we feel, we face, and we see. We are going to read that. So let's start. Now read the poem that brilliantly describes the sights from a moving train. Now we are going to read that how many sights, how many images, how many places we see from a moving train and how it is described. The poem is written by Robert Louis Stevenson. Okay, the poet name is Robert Louis Stevenson. Now let's start the poem. Faster than fairies, faster than witches, bridges and houses, hedges and ditches. Here you can see fairies. What is the meaning of fairies? A small imaginary being of human form that has magical पावर्स. हिंदी में हम इसे बोल सकते हैं जैसे परियां होती हैं उनसे भी तेज. फास्टर देन फेरीज, फेरीज से भी तेज. फास्टर देन विचेस, विचेस से भी तेज. नाउ विचेस इज अ क्वारलसम अगली वुमेन, जिसको हम चुड़ैल डायन भी बोलते हैं. इन दोनों से तेज क्या है? ट्रेन. ब्रिजेस एंड हाउसेज, हेजेस एंड डिचेस. ब्रिजेस और हाउसेज यूं कंटिन्यूटी में ये क्रॉस करती जा रही है. हेजेस को क्रॉस कर रही है. हेजेस मीन्स रो ऑफ बुशेस. हम जब ट्रेन में बैठते हैं तो एक ऐसा भी रास्ता आता है जहाँ पे बहुत सारी झाड़ियाँ होती हैं, खेत होते हैं, तो वहाँ पर हेजेस मीन्स रो ऑफ बुशेस, यानी कि वो हेजेस को भी फटाफट पार करते हुए निकल रही है, वहाँ से पास हो रही है. डिचेस मीन्स अ नैरो चैनल डग इन द ग्राउंड, मतलब जो छोटे छोटे खड्डे होते हैं, खाई टाइप होती है छोटी छोटी सी, उनको भी वो पार करते हुए निकल रही है. इतनी फास्ट है ट्रेन. And charging along like troops in a battle all through the meadows, the horses and cattle. All of the sides of the hill and the plain fly as thick as driving rain. And ever again in the wink of an eye painted stations whistle by. Now in this poem, through these lines, the poet describes that the train is being faster than fairies. जो ट्रेन है वो फेरीज से भी फास्ट हो रही है, विचेस से भी फास्ट हो रही है. As it charges like an army going to battle. और क्यों हो रही है? क्योंकि इस तरह से चार्ज हो रखी है जैसे कि एक आर्मी को चार्ज किया जाता है बैटल में जाने से पहले. जैसे एक आर्मी की फोर्स होती है, जो सोल्जर्स होते हैं वो एकदम बिल्कुल चार्ज हो जाते हैं एक लड़ाई से पहले, एक वॉर से पहले. बिल्कुल ट्रेन वैसे चार्ज हो रखी है. It flies over meadows where cattle and horses are grazing. What is the meaning of meadows? A piece of grassland. Means grasslands को भी ये पार करते हुए जा रही है, उन grasslands को जहाँ पर horses और cattle graze कर रहे हैं, यानी कि चारा चर रहे हैं, इधर से उधर घूम रहे हैं. एंड पास्ट हिल्स एंड प्लेन्स, और हिल्स और प्लेन्स को भी ये पार करते हुए इनको यहाँ से निकल रही है. एकदम इतनी फास्ट चल रही है. As quickly as the wink of an eye, the train has crossed painted stations. And जैसे ही जितने ही देर में हम अपनी आँख झपकाते हैं, wink of an eye means आँख झपकाना. जिस पल में हम आँख झपकाते हैं उसी पल में ये एक स्टेशन भी पार कर लेती है, यानी कि इतनी सारा जो स्पेस है, इतनी सारी जगह वो एकदम से वहाँ से निकल जाती है. द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़ एक्सप्लेन्ड हेयर. यहाँ पर ट्रेन की स्पीड बताई गई है कि कैसे ट्रेन इतनी जल्दी एक इतनी लंबी जगह को पार कर लेती है. Here is a child who clambers and scrambles. The meaning of clambers is climbs with difficulty. Scrambles means crawls with difficulty. Clambers means climb with difficulty, यानी कि बहुत मुश्किल के साथ चढ़ना, climb करना. Scramble मतलब crawl करना बहुत मुश्किल से. Crawls with difficulty means बहुत मुश्किल से crawl करना, यानी रेंगते हुए चलना. All by himself and gathering brambles. What is the meaning of brambles? Blackberries. वो क्या कर रहा है? बिल्कुल मेहनत कर रहा है क्योंकि उसको blackberries इकट्ठी करनी है, खानी है.
Here is a tramp who stands and gazes, and here is the green for stringing the daisies. Here is a cart run away in the road, lumping along with man and load. And here is a mill, and there is a river, each a glimpse and gone forever. Now, in this stanza, in this paragraph, the poet is describing that a little child all alone who is standing in front of the window of that coach of the train, who is struggling to gather some blackberries, कि वो वहाँ खड़े खड़े जो blackberries दिख रही हैं उनको अपने मन में सोच रहा है कि वो उनको कैसे वहाँ से उठाए. एंड देयर ही इज स्टैंडिंग एंड गेजिंग, वहाँ पे वो खड़ा है और घूर रहा है. गेजेज मीन्स लुक स्टेडिली, मतलब एक ही जगह एक ही चीज़ को घूर घूर के देखना. ट्रैम्प मीन्स वॉक नॉइजीली, मतलब आवाज़ करके चलना. द ट्रेन देन पासेस अ कार्ट लगिंग द मास्टर एंड हिज लोड. अब जो ट्रेन है वो कहाँ से गुजर रही है, मतलब जहाँ सामने क्या दिख रहा है कि एक कार्ट है जिस पे बहुत सारा सामान रखा हुआ है और उसके साथ साथ उसका मास्टर भी है जो कि उसको आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है. अ मिल एंड अ रिवर ईच जस्ट अ फ्लीटिंग ग्लिम्स. और ये सारी चीज़ें, एक मिल, एक रिवर, एक ही पल में, एक ही झटके में जल्दी से वहाँ से गायब हो जाती है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्लिम्स? क्विक लुक, मतलब जल्दी से, मतलब द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़ सो फास्ट कि एक ग्लिम्स में ही ये सब कुछ पीछे छूट जाता है. The poem is over. Now I will tell you something like to end up this poem. Like in this poem, the poet describes the scenes. What is the poet describing? The poet is describing the scenes that he sees from a fast moving train. यहाँ पर जो poet है वो खुद ट्रेन में बैठ कर जो सीन देख रहा है वो बता रहा है. He sees many things. They include bridges, houses, ditches and meadows, horses, cattle, hills, plains, painted stations, cart, a child, a tramp, mills and rivers. यहाँ पर उन्होंने, जो ये पोएट है, इन्होंने किन किन चीज़ों का जिक्र किया है, इन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं. ब्रिजेस, हाउसेस, डिचेस, मीडोज एंड ऑल दीज थिंग्स द पोएट हैज़ टोल्ड about. Although the mountains, valleys, meadows and rivers appear for a moment. और वो पोएट ये भी बता रहा है कि ये जो सारी चीज़ें हैं, माउंटेन्स हैं, मीडोज़ हैं, ये सिर्फ एक पल के लिए सामने दिखी और फिर गायब हो गई. And these all images are filling this पोएट विद हैप्पीनेस. ये जो पूरी इमेजेस हैं ये पोएट को बहुत खुश कर रही हैं और ये जो जर्नी है इससे पोएट बहुत ज़्यादा खुश और बहुत अच्छा फील कर रहा है. एंड दीज इमेजेस, दीज प्लेजर स्टेड इन हिज माइंड फॉर अ लॉन्ग टाइम. और ये जो पूरी चीज़ें हैं उसके दिमाग में बहुत लंबे टाइम तक रहती हैं. So the poem is over. Hope you will see this video carefully to understand this properly.